तो कल का रिवाइज करते हुए वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हमसे क्या कह रही है, क्या क्या कह रही है, कल जो पढ़ा था वही कह रही है। तो बेसिकली क्वेश्चंस पूछ रही है, क्या कुछ नहीं रही है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। सो कॉस इनवर्स, एक क्वेश्चन बेस कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूड रेंज कितनी होती है, जल्दी बताएं जल्दी। 0 to pi। 0 to pi। बुक खुली तुरंत, तुरंत खुलती है। अच्छा, तो प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन क्या है, 0 to pi प्रिंसिपल वैल्यूड रेंज। अब मुझे क्या करना है, 0 cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। सो इफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, दैट मीन्स cos y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। Now in this principal value range, what value of y will give you minus half? Cos 6. So again, not in the first quadrant, in the second quadrant. Cos pi minus theta is equal to minus cos theta. Yes. Yes. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, for what value of theta is cos theta equals to half? So what you will have is that cos pi by 3 is equals to half. Yes? By this formula what does it mean, that cos pi minus pi by 3 क्या होगा, what will be pi minus pi by 3? 2 pi by 3. So cos pi minus pi by 3 would be minus of cos pi by 3, that is minus half. And this implies what, that y is equals to what, 2 pi by 3. Yes or no? Next, what do we have? We will go about one more question that says tan inverse, और मुझे इसका आंसर आप बताएंगे। tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2 is equals to what? The principal valued range for tan? Minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2 open brackets. Yes? Yes. And what is the principal value range for sec? 0 to pi 0 to pi minus pi by 2. minus pi by 2, correct. So what do we have here is tan inverse of root 3, तो मुझे पता है किस वैल्यू पे आएगा, किस पे आएगा, tan inverse of root 3 किस पे आएगा, pi by 3 पे आएगा। I don't think so pi by 3 पे आएगा। Tan 60 degree. tan 60 degree पे, that is pi by 3 only. It is tan 30, tan 30 पे आता है root 3। Oh yeah, tan 30. Tan 60 पे it is 1 by root 3. Yeah. So this is what, pi by 6. Alright. And what is sec inverse, sec inverse of 2 कितने पे आएगा? When you will have sec, what, for what theta is sec theta equals to 2? Sec is 1 upon cos. Pi by 3. Pi by 3, right? So अब हमारे पास pi by 3 तो है, 0 to pi again. So when we will talk about sec pi minus theta, that would be minus sec theta. Yes or no? Yes. So what we'll have here is for sec to be equals to, again y is equals to sec inverse of minus 2. That implies what? That sec y is equals to minus 2. And for what value of y in the principal valued range will be sec y is equals to minus 2? Pi minus theta. What is this theta? Theta is pi by 3. Yes? Sec pi by 3 कितना है?
थीटा माइनस पाई बाई, ये पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा? Minus of sec pi by 3, that will be what? Minus 2. So for what value of y would be sec y equals to minus 2? 2 pi by 3. For y is equals to 2 pi by 3. Yes. So इसका solution क्या होगा इस वाले का? Y is equals to what? 2 pi by 3. So this is what? Pi by 6 minus 2 pi by 3. Yes. So what value will you get? Pi minus, you have to do it over 6. So you get 4 pi. Yes. Which is minus 3 pi by 6. Which is what? minus 5 by 2. So question number 14 says tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2. ठीक है, तो इसमें हम इंडिविजुअली इसके लिए सॉल्व करेंगे और इसके लिए सॉल्व करेंगे, संग में तो नहीं कर सकते। सो सबसे पहले लेट्स से दैट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3. दिस इंप्लाइज व्हाट? दैट tan y इज इक्वल्स टू रूट 3. यस. Yes. अगेन प्रिंसिपल वैल्यूड रेंज ऑफ tan y इज minus 5 by 2 to pi by 2. So for what value of y does tan y is equals to root 3? Pi by 3. Pi by 3, 60 degrees. Right, so this implies that y is equals to pi by 3. Now for this, let's say z is equals to what? Sec inverse of minus 2. So this implies what? That sec z is equals to minus 2. ठीक है? Now sec मेरा कैसा है? minus 2. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसी है? 0 to pi minus 5. minus pi by 2, right? Now in 0 to pi मेरा sec नेगेटिव किस में आता है? In the second quadrant? Yes. So what will I use here? Sec pi minus z will be equals to minus sec z. Yes. Yes. For what value of हमारे पास कितना होना चाहिए यहाँ पे? z नहीं लेते हैं, थीटा ही लेते हैं, कि z तो हमने दूसरी चीज ले लिया, राइट? सो माइनस sec थीटा. So for sec z equals to minus 2. Yes, for this we have to do what? We have to equate it with what? So I already have minus sec theta here. So if sec theta is equals to what? 2. For what value of theta will sec theta be equals to 2? Pi by 3. Pi by 3, right? Sec pi by 3 is equals to what? 2. So sec pi minus pi by 3 would be what? Minus sec pi by 3, which is minus 2. So what will be that? This implies what? That z is equals to pi minus pi by 3, that is 2 pi by 3. Yes? So what will this value be? Pi by 3 minus 2 pi by 3, which is what? Minus pi by 3, which is the B option. ठीक है, मेक सेंस? Yes. नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो उसके लिए पहले तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद होनी चाहिए. अभी हमारे पास क्या था? 1 अपॉन साइन एक्स वुड बी व्हाट? 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है? कोसेक एक्स. 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है? सेक एक्स. यस, यस और नो? Yes. यही होता है. व्हाट अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? गॉट इज. पहली बात तो जब भी हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी ब्रांच पे बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर डोमेन. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. तो ब्रांच हमारी क्या होती है? जो हमने प्रिंसिपल ब्रांचेस कल पढ़ी थी और हमने ब्रांचेस जो पढ़ी थी. तो लेट्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्सेस, इनवर्सेस आर सपोज्ड टू बी ऑन अ पर्टिकुलर branch. What do we have here is the first function that says is that sine inverse of 1 by x is basically equals to cosec inverse x. Rather than these going here and there, what do we have is sine inverse of 1 by x is equals to
cosec inverse of x. Alright, and for what x? X should be greater than equals to 1 or x should be less than equals to -1. Why so? क्योंकि sin x किस पे डिफाइंड होता है? sin इनवर्स x किसके लिए है? डिफाइंड फॉर ऑल x बिटवीन -1 to 1, yes or no? sin कहां से कहां तक जाता है? r to -1 to 1. हमने sin को रिस्ट्रिक्ट किया था कल कौन से वाले उस पे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आई थी हमारी साइन के लिए? जल्दी साइन के लिए π/2 -π/2 to π/2. Yes, so for sine going from -π/2 to π/2 we have a inverse. Yes, and what is that inverse is going to be from -1 to 1 to -π/2 to π/2. Yes or no? Yes. तो for x अगर यहाँ पे मेरा क्या है, अगर मैं y को 1/x मान लूँ तो मेरा y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 to 1, दैट इज माई डोमेन. तो मेरा 1/x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1/x का डोमेन किसके बीच में? -1 to 1, दैट इज x का डोमेन किसके बीच में है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1. यस और नो? एंड इसको अगर हम लोग इंटरवल्स के टर्म में लिखेंगे तो ये कैसा होगा? This is x should be greater than equals to 1 or x should be less than equals to -1. Yes or no? Yes. तो इसलिए x कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? Either it should be greater than 1, equals to 1 or less than equals to -1. Make sense? Similarly, what does it say? Second वाला हमसे क्या कहता है? That cos inverse of 1/x is equals to what? Sec inverse of x. Yes? Yes. For x greater than सेम उसी तरीके से greater than equals to 1 और x less than equals to -1, क्योंकि cos भी कहां से कहां तक जाता है? Cos is defined from r to -1 to 1. तो जो तुम्हारा cos को मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगी किस पे करते हैं हम रिस्ट्रिक्ट? 0 to pi to -1 to 1. And this will imply what? That cos inverse is defined from -1 to 1 to 0 to pi. Yes? अब इनको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यस और नो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक्स 1. तो अभी अगर मैं मान लेती हूँ सपोज दैट cos x, ठीक है, cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू y. इसका क्या मतलब होता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हियर. प्रूफ. सो cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या होगा? दैट x इज इक्वल्स टू cosec y. यस? Yes. So can I say that x is equals to 1 upon sin y, which implies that sin y is equals to 1 upon x, and this implies that y is equals to sin inverse of 1 by x. Yes or no? Yes. And this will imply what? y क्या था? cosec inverse x. हमने y को क्या लिया था? cosec inverse x. This implies what? That cosec inverse x is equals to sin inverse of 1 by x. Yes? The first property says this. The second says this. The proof of the very first property is this. How about second? Second कर पाएंगे? Yes. sec इनवर्स x को क्या ले लूं मैं? इसको बता दूं? So अगर मैं sec इनवर्स x को क्या ले लूं? y for the second one. Then what would happen? X would be equals to sec y. Yes? That is equals to x is equals to cos y. That will imply what? That cos y is equals to 1 upon x, and that will imply what? That y is equals to cos inverse of 1 by x. And y क्या था हमारा? Sec inverse of x. So this will imply what? That sec inverse of x is equals to cos inverse of 1 by x. Yes? We'll go the same way. We also had was that tan x कैसा लिख सकते हैं हम लोग? 1 upon cot x. Yes? Yes. Right? And similarly
हमारे पास और क्या आता है? इसके अलावा हम कोई इनवर्सेस और लिख सकते हैं? नो, राइट? सो tan x कैन ऑल्सो बी रिटन एज cot x। तो इसको भी अगर मुझे प्रूव करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? मेरी प्रॉपर्टी क्या आनी चाहिए? मेरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहनी चाहिए? अभी तक हमने जितने भी प्रूव्स किए हैं उसके हिसाब से tan इनवर्स ऑफ 1 by x should be equals to what? Cot x. Cot inverse of x. For x, x पे कुछ restriction, मेरा tan कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? -π/2 to π/2. For tan inverse, we can definitely say that कि मेरा tan डिफाइंड होता है, मेरी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan है -π/2 to, and where it is going, where are all the values going? They're going to R. Yes? So, when I say that tan inverse, what will it go from? R to? Yes? -π/2 to π/2. Do I have a domain restriction? क्या मेरे डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे? No. नहीं है। तो फिर क्या यहाँ x पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? सबसे पहली बात तो 1/x है, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो होगा ही होगा। यस? Yes. व्हाट एल्स? एनी अदर रिस्ट्रिक्शन? I think so. You don't think so? What about you? We just say that for x greater than 0. Why do we say so? So how do we prove about it? Let's go to the proof. Proof क्या कहता है हमसे? मैं ले लूँ cot inverse of x को क्या? y. So this will imply what? That x is equals to cot y. Yes? Yes. So next what we will have? What will we have? This can be written as x is equals to 1 upon tan y, and this imply what? That 1 upon x is equals to tan y, and this will imply what? That tan inverse of 1 upon x is equals to y, which is what? Cot inverse of x. Okay, the fourth property says negatives of x. We will talk about sin of minus x कितना होता था? Sin minus x is what? -sin. Yes, Mishti Diti? Yes. What is sin of minus x? How about it? We have to find out what? That sin inverse of minus x कितना आता है? ठीक है? So for this, let's take it to be y. ठीक है? So हमारे पास इससे कितना आएगा? That minus x is equals to sin y. Yes? Yes or no? Yes. Yes. Now, when we are talking about that, this can say that x is equals to minus sin y. Yes or no? Yes. In what case scenario do we have minus sin y? Can I write it as sin of minus y? No. क्यों? क्योंकि sin of minus x is minus sin x, जो कि बिट्टू दी ने बोला था और मिष्टी दी को बिल्कुल याद नहीं है। That sin of minus is minus sin x. Why? Because x हम कैसे लेते हैं? जब भी हमें साइन समझने होते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम x को क्या मानते हैं? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही मानते हैं। तो अगर मेरा x कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मेरा माइनस एक्स इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही मेरे साइन की वैल्यू, साइन कैसा होता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? Minus. नेगेटिव, नॉट माइनस, नेगेटिव। Sin x is, values of sin x is negative for x in the fourth quadrant. In the first quadrant sin x की values कैसी होती हैं? पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव है, मतलब sin x कैसा है? x कहाँ पे है? बिटवीन 0 to π/2, ये हम मानते हैं, राइट? तो मेरा माइनस एक्स कहाँ पे होता है? 3π/2 to 2π. यस? इसमें मेरे sin x की वैल्यू कैसी है फॉर दिस x? ग्रेटर देन 0. फॉर दिस x sin x की वैल्यू कैसी है मेरी?
इस x के लिए sin x की वैल्यू कैसी है मेरी? Less than 0. लेस देन 0। तो साइन ऑफ माइनस एक्स जो कि इस क्वाड्रेंट में आता है वो नेगेटिव होता है और जो इस क्वाड्रेंट में आता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा होना चाहिए? इन दोनों के साइंस कैसे हैं? ऑपोजिट है। तो मेरा साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा दिखेगा? माइनस साइन एक्स जैसा। यस तो ये कैसा? कैन आई राइट इट एज दिस? Yes, so can I say that sine inverse of x is equals to minus y? What was y? What was y? Hey Bhagwan, I can write it as minus sine inverse of minus x is equals to y. Y is equals to sine inverse of minus x. Yes or no? ये तो sin inverse of x फिर plus. Yes or no? Yes. ये x था तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, सेम एज दिस। एंड व्हाट डू वी हैव x फॉर? कौन सा था ये? फोर्थ प्रॉपर्टी थी, राइट? एंड x कहां से कहां तक? लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, तो जब मैं साइंस की बात कर रही थी तो साइंस मेरे से क्या कह रहे थे? मेरे पास कितने होते थे बेसिकली? साइन x, एक तो नॉर्मल x वाला होता था, एक कितना होता है? पाई माइनस एक्स। यस, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स कैसा हो जाता है? साइन एंड कॉस वर्क्स विद व्हाट? उनका पीरियड क्या होता है साइन और कॉस का? 2 पाई। पीरियड का क्या मतलब होता है? आफ्टर दैट वैल्यूज क्या होने लगती है? रिपीट होता है। तो साइन का क्या फंक्शन होता है? 2 पाई। मतलब हम क्या मतलब होता है हमारा कि साइन पीरियड का क्या मतलब है? साइन 2 पाई प्लस एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? साइन एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? कॉस एक्स। टैन का पीरियड क्या होता था? पाई। ये तो याद होना चाहिए। यस, तो हम कहाँ तक बात करते हैं? सिर्फ इनकी बात करते हैं टिल 2 पाई माइनस एक्स। जैसी 2 पाई प्लस एक्स की बात आएगी वैसी वैल्यूज क्या होने लगेंगी? रिपीट होने लगेंगी, है ना? मेक सेंस? सो और अगर tan या cot की भी बात करें तो भी उनका पीरियड पाई होता है, तो 2 पाई ऐड कर देंगे तो उनकी भी वैल्यूज क्या होने लगेंगी? रिपीट होने लगेंगी। जिनकी वैल्यूज पाई ऐड करते ही रिपीट हो रही है उनकी वैल्यूज n पाई ऐड करके भी रिपीट होंगी। तो n अगर 2 है तो 2 पाई ऐड करके भी रिपीट होंगी। तो हम इन्हीं चारों की बात करते थे। नाउ अप टिल अनलेस जब तक मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, पाई बाय 2 प्लस एक्स एंड पाई बाय 2 माइनस एक्स, तब तक साइन क्या रहता है? साइन। और कॉस क्या रहता है? कॉस। मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि कॉस और साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके हिसाब से मैं प्लस माइनस लगाती चली जाती हूँ। ठीक है, और जैसे ही मुझे पता है कि साइन और कॉस की इन सब पे वैल्यूज क्या है, वैसे ही मुझे पता है कि बाकी सब फंक्शंस की इन पे वैल्यूज क्या है। यस और नो? साइन कॉस अगर मुझे पता है तो मैं tan निकाल सकती हूँ, मैं कॉट निकाल सकती हूँ, मैं कोसेक निकाल सकती हूँ, मैं सेक निकाल सकती हूँ। यस और नो? ठीक है, तो मुझे सिर्फ फोकस किन पे करना है अभी? साइन और कॉस पे। तो फॉर फोकसिंग मैं क्या मान के चलती हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल एक्स है वो किस में है? 0 to पाई बाय 2, मतलब कि वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये नहीं भूलना है मुझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मीन्स व्हाट? दैट सारे पॉजिटिव हैं। साइन, कॉस, कोसेक, टैन, कॉट सब क्या होते हैं? पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव इन द सेंस सबकी वैल्यूज क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। तो व्हेन आई एम गोइंग अबाउट, अब मेरा क्या है? अब मुझे इन पे चेक करना है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को छोड़ देती हूँ कि इनपे क्या होता है? मेरा साइन क्या ले लेता है? कॉस की वैल्यूज लेता है, और कॉस क्या करता है? साइन की वैल्यूज लेता है। तो पहले मैं किस पे चेक करती हूँ? पाई माइनस एक्स में। पाई माइनस, अगर मेरा एक्स इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मेरा पाई माइनस एक्स इसमें आता है सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज पाई, पाई माइनस एक्स वुड बी सेकंड क्वाड्रेंट। यस, तो मेरे पास क्या आएगा? पाई माइनस एक्स इज द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन कैसा है मेरा? साइन कैसा है मेरा इन द सेकंड क्वाड्रेंट? पॉजिटिव, ऐसा है ना? और कॉस कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? दैट साइन पाई माइनस एक्स, और मुझे पता है ये कौन सी वैल्यू रखेगा? साइन एक्स की। यस, मैंने क्या कहा? किस केस सिनेरियो में साइन कॉस की और कॉस साइन की लेता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, राइट? तो ये किसकी वैल्यू रखेगा? साइन की वैल्यू रखेगा। तो साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन एक्स कैसा है? एक्स किस में है? तो साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। साइन पाई माइनस एक्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस।
व्हेन वी कम टू साइन पाई प्लस एक्स, ठीक है, अगर मैं पाई प्लस एक्स की बात करती हूँ तो पाई प्लस एक्स किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव है। Yes. और साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो दोनों के साइंस कैसे हैं? दे आर ऑफ अपोजिट साइन। तो इसका मतलब साइन पाई प्लस एक्स कैसा होता है? Negative. माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी की बजाय मैं साइन 2 पाई माइनस एक्स की अगर बात करूं तो मेरा 2 पाई क्या है ये? तो 2 पाई माइनस एक्स किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा है? Negative. नेगेटिव। और साइन एक्स कैसा है? Positive. तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा? Negative. माइनस साइन एक्स। मेक सेंस? Yes. इसी की बजाय अगर मैं बात करती हूँ cos पाई माइनस एक्स की, तो cos इज पॉजिटिव, cos x इज पॉजिटिव क्योंकि x किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो cos x कैसा है? पॉजिटिव है। अब मेरा पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? Negative. तो ये कैसा आएगा? Negative. माइनस cos x, राइट? समझ में आ रहा है मिष्टी? पाई प्लस एक्स, जल्दी बताओ cos पाई प्लस एक्स कैसा होगा? पाई प्लस एक्स इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, Negative. negative, so this will be minus cos x. And what about cos 2 pi minus x? Positive. Positive, क्योंकि cos in the fourth quadrant is positive, so this will be equals to positive cos x. कोई डाउट? No. अब जैसे ही हम लोग पाई बाय 2 की बात करते हैं, इन दोनों की, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, वैसे ही मेरा साइन क्या हो जाता है? cos में, और cos कैसा हो जाता है? साइन में, ठीक है। सो मैं बात अगर कर रही हूँ cos पाई बाय 2 माइनस एक्स की, तो मुझे पता है यहाँ साइन एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा है? पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पाई बाय 2 है, यस। सो अगर मेरा x इज बिटवीन व्हाट? 0 टू पाई बाय 2, देन माइनस x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू 0, एंड देन पाई बाय 2 माइनस x इज व्हाट? पाई बाय 2 ऐड कर दूं, 0 पाई बाय 2 माइनस x एंड व्हाट? लेस देन पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 भी किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 माइनस x भी किस में आता है? अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाय 2 माइनस x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? Positive. cos कैसा है? पॉजिटिव। तो cos पाई बाय 2 माइनस x विल बी इक्वल्स टू sin x, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। मेक सेंस? cos pi by 2 minus x is in the first quadrant, positive. Sin x is in the first quadrant, positive. Similarly for sin pi by 2 minus x, yes, वो किसके बराबर होगा? cos x, right? क्योंकि sin pi by 2 minus x is positive and cos x is positive. When we talk about sin pi by 2 plus x, तब क्या होता है? pi by 2 plus x is in the second quadrant. अब साइन किस में चेंज होगा? cos में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाई बाय 2 है, राइट? यहाँ पाई बाय 2 है तो साइन किस में चेंज होगा? cos में, ठीक है। cos x कैसा है? cos x कैसा है? x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos x इज पॉजिटिव। x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos x इज पॉजिटिव। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो sin pi by 2 plus x will be equals to cos x. What about cos pi by 2 plus x? ये किसके बराबर होगा? sin x के तो बराबर होगा, बट sin x कैसा है? पॉजिटिव। cos pi by 2 plus x कैसा है? पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, नेगेटिव। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस sin x. मेक सेंस? अब याद रहेगा? Yes. तो अब अगर हम इधर मूव फॉरवर्ड करूँ और मैं पूछूं साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा होता है, तो कैसे बताओगे साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स वुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव। साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा है? नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? माइनस साइन एक्स, यस। एंड cos x कैसा है? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। cos x इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा है? पॉजिटिव। सो cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू cos x, यस। तो साइन ऑफ माइनस x कैसा आता है?
मेक सेंस? बिट्टू तो ऐसा लग रहा है। तो हम जब साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे थे तो मेरा कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। राइट, समझ में आया था इसका प्रूफ पक्का से? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये पहला। दूसरा मैं अगर बात करूं tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की, तो वो कितना आना चाहिए, पहले प्रूव करके देखें। tan इनवर्स ऑफ minus x be equals to y. This implies what? That minus x is equals to tan y. This implies what? That x is equals to minus tan y. अब minus tan y है तो क्या होगा, जल्दी बताएं जल्दी। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, tan माइनस एक्स सॉरी कितना होता है, माइनस tan x की tan x? tan x आप बताएं। माइनस tan x। minus tan x. Sin of minus x is minus sin x. Cos of minus x is cos x. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, sin of minus x upon cos of minus x. This will be what? Minus sin x upon cos x. That would be minus tan x. So minus tan x होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, s can be written as tan of minus y, and this implies what? That tan inverse x is equals to minus y, and this implies what? That minus tan inverse of x is equals to y, which is equals to tan inverse of minus x. तो इसका मतलब tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x. Yes? और क्या आएगा मेरा, cosec inverse x. cosec inverse of minus x कितना आएगा, cosec inverse of minus x माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। क्यों, क्योंकि सिमिलरली cosec ऑफ माइनस x कितना होता है, माइनस cosec x। cosec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन sin ऑफ माइनस x, which will be equals to 1 upon minus sin x, that will be equals to what, minus of cosec x। So similarly जैसे इसका प्रूफ किया, sin x का प्रूफ किया, वैसे cos inverse of minus x would come out to be cosec inverse minus of cosec inverse x. Yes? cos inverse of minus x कितना आएगा, cosec x, तुम बताओ। cos inverse of minus x तुम कह रही हो cos x आएगा। What about you? cos inverse x। cos inverse x. What about you? cos inverse x। एक ने बोला, भाई ने बोला कूदने का तो कूदने का। वही वाले हाल है तुम लोगों के। अगर थोड़ा से मुंह बना के पूछो तो एक दूसरा जवाब देगा, दूसरा दूसरा के कुछ तो सही होगा, और जरा ऐसे पूछ लो मुस्कुरा के तो सेम जवाब। तो दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, बस कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो सही जवाब निकल ही जाएगा। वो आपने तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस x। इसका क्या मतलब आएगा, दैट cos y इज इक्वल्स टू माइनस x। यस, दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट x इज इक्वल्स टू माइनस cos y। अब बहुत बढ़िया बात है कि माइनस cos y को मैं कैसे cos के टर्म्स में लिख सकती हूँ। मुझे y ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। अभी तक मैं क्या कर रही थी, जब मेरा यहाँ पे आ रहा था माइनस tan y, तो व्हाट आई वाज राइटिंग इट एज tan ऑफ माइनस y। Why? Because I know कि tan of minus y is equals to minus tan y. So cos of what is equals to minus cos y? plus x। Pi plus y. Cos of pi plus y is cos pi minus x। cos pi minus x. Cos pi plus x is what? It is minus cos y, that is no doubt about it. Cos of pi minus y is also equals to minus cos y. There is also no two way about it. कौन सा वाला लेंगे is the question. Let's not forget that जब हम inverse की बात कर रहे हैं तो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to pi to minus 1,1. So let's not forget कि डोमेन के बाहर नहीं जा सकता। So cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है,
0 to pi 0 to pi 2 minus 1. कॉस अगर मेरा 0 to pi टू -1 to 1 जा रहा है तो मेरा कॉस इनवर्स भी 0 to pi टू -1 to 1 जाएगा. Cos जाता है. I am so done with you. मैंने बोर्ड पे कॉस लिखा था, कॉस. अभी इनवर्स लगाया मैंने सामने से. कॉस कहाँ से कहाँ तक जाता है? कॉस जाता है फ्रॉम r टू -1 to 1. बट इनवर्स निकालने के लिए हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0 to pi टू -1 to 1. और कॉस इनवर्स कहाँ से जाता है? -1 to 1 to 0 to pi. ठीक है. अब जब मैं इसकी बात कर रही हूं माइनस कॉस वाई की, तो मेरा डोमेन क्या होगा इस केस में? 1. तो y कहां से कहां तक के बीच में है? 0 to pi. तो मुझे उसको कहां से कहां तक के बीच में रखना पड़ेगा? 0 to pi. pi प्लस y क्या 0 to pi के बीच में आएगा? इफ y इज बिटवीन 0 to pi, pi प्लस y कहां से कहां तक आएगा? pi to 2 pi. डोमेन चेंज हो गया. Yes. What about minus y? That will be between -pi to 0. So that means pi ऐड करते ही कितना आ जाएगा? pi minus y would be between what? 0 to pi. तो मैं क्या लूंगी? pi minus y. मैंने सही बोला. So this will be equals to what? This implies that x is equals to cos. X is equals to minus cos y. तो मेरा x is equals to कितना आएगा? cos pi minus y. समझ में आया क्यों? Yes. क्यों नहीं लेंगे हम pi plus y? So अब मेरे पास क्या आता है? This implies what? That cos inverse of x is equals to pi minus y. And this will imply what? That pi minus cos inverse of x is equals to y, which is equals to what? Cos inverse of minus x. इसका मतलब क्या आता है? That cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. It will not be equals to cos inverse of x. क्या बोला था? cos inverse of minus x. आप लोग के अकॉर्डिंग आना चाहिए था cos inverse of x. No, it is pi minus cos inverse of x. sec inverse of minus x कितना आएगा? sec inverse of minus x कितना आएगा? pi minus sec inverse of x. ठीक है. और ऐसे ही cot inverse of minus x कितना आएगा? pi minus cot inverse of x. इनको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत है कि कर लोगे? परफेक्ट. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज ऑल्सो x. हमेशा हमें ध्यान रखना है इसमें mod x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. यस. और इसमें x कैसा होगा? बिलोंगिंग टू r. यस. डोमेन्स इनके रेंजेस डोमेन्स सब याद है इनकी. तो cos इन sec इनवर्स x के लिए x कैसा होगा? ग्रेटर देन mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. और इसके लिए x बिलोंगिंग टू r. यस. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? हम जाते हैं फोर्थ पे. फोर्थ हमसे क्या कह रहा है? दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होना चाहिए? फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 1. इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि x -1 to 1 क्यों है. हम अब इस पे बात करेंगे. ये कैसे करोगे? लेट साइन इनवर्स ऑफ x बी इक्वल्स टू y. ठीक है. तो इसका क्या मतलब आएगा? दैट साइन y इज इक्वल्स टू x. हो जाएगा? यस और नो? और क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? cos pi by 2 minus y लिख सकती हूँ. प्रॉपर्टी cos pi by 2 minus x किसके बराबर होता है? यस. अभी पढ़ा है यार 2 मिनट पहले यार.
तो इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे, दिस इंप्लाइज व्हाट, मैंने क्यों इसे कॉस में चेंज किया, क्योंकि मुझे यहाँ कॉस की भी बात करनी है, मेरे पास साइन है बट मेरे पास कॉस नहीं है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज इट इनटू कॉस, और मेरे पास कॉस में चेंज करने के लिए क्या तरीके होते हैं, दो, π/2 प्लस वाई एंड π/2 माइनस वाई। मैं π/2 प्लस वाई क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे डोमेन से बाहर चला जाएगा। मेरा डोमेन क्या होना चाहिए इस केस सिनेरियो में, अगर मैं साइन की बात कर रही हूँ, माइनस π/2 टू π/2, यस। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट π/2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x, यस। This implies what, that π/2 is equals to cos inverse of x plus y, and this implies what, that π/2 is equals to cos inverse of x plus y कितना था, sin inverse of x, yes। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है, tan inverse of x plus cot inverse of x, कितना आना चाहिए, कितना, π/2 for x in R। Now what a beauty it is, but अगर मैं tan inverse x को क्या मान लू, y, तो this will imply what, that x is equals to tan y। अब मैं tan y को कैसे लिख सकती हूँ, can I write tan y as cot of π/2 minus y, yes or no, ये x is equals to 10y कैसे y ये लिख सकती हूँ मैं tan y को cot π minus 2 minus y, cot π minus 2y will be equals to cos π/2 minus y upon sin π/2 minus y, cos π/2 minus y is sin y and cos π/2 minus y is cos y, तो उल्टा हो जाएगा, sin y upon cos y, that will be equals to tan y। So now what do we have here is, similarly as we did before, cot inverse of x is equals to π/2 minus y, and this will imply what, that cot inverse of x plus tan inverse of x is equals to π/2, yes। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी थर्ड प्रॉपर्टी मुझसे क्या कहेगी, दैट sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे x इन ऑल x इन r, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे फॉर ऑल x क्या आएगा, फॉर ऑल मॉड x ग्रेटर देन 1, यस, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड नहीं सॉरी और, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू -1, 0, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी आती है, रब कर दूं इसे मैं, माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज that tan inverse of x plus, अब आएगा मजा, tan inverse of y, this is the fourth का पहला, सॉरी फिफ्थ का पहला, yes you're right, फिफ्थ का पहला, tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to what, tan inverse of x plus y whole upon 1 minus xy for what, xy less than 1। ये तो tan का वो लग रहा है, नहीं tan का वही है, वही है, अच्छा। tan x plus tan y is equal to tan Now if I take tan inverse of x as say phi and tan inverse of y as psi, ठीक है, yes, so मेरे tan of phi plus psi की प्रॉपर्टी क्या होती है, tan x plus y की 1 tan x plus tan y 1 minus tan x tan y, yes, ठीक है। सो ये मेरी प्रॉपर्टी आती है। अब ये tan phi मेरा क्या है,
अगर मेरा tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू फाई है और tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू साई है, इसका मतलब क्या, दैट x इज इक्वल्स टू tan फाई एंड y इज इक्वल्स टू tan साई. यस, ये इंप्लाई करेगा. तो इसका मतलब मेरा tan फाई कितना है x, मेरा tan साई कितना है y. यस, 1 माइनस एक्स वाई. तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, दैट फाई प्लस साई इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. यस, यहां से आएगा. तो इससे क्या आएगा मेरा, फाई क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, साई क्या है, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई. इजी. tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y कितना आएगा, कम ऑन गाइज. tan इनवर्स ऑफ कितना आना चाहिए, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई. यस और नो, यस और नो. यस, मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, वो समझ में आ रहा है पक्का से. क्यों, क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकता, राइट. तो हम इसको क्या कोशिश करते हैं, दैट x माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, ताकि एक्स वाई शुड नॉट बिकम 1 प्लस एक्स वाई शुड नॉट बिकम 0, so it should not be -1. and what we are trying here is we are trying to keep x greater than 0, जो हम लोग पहले कर रहे थे. वाई, बिकॉज जैसे ही नेगेटिव की बात आती है वैसे ही माइनस tan x क्या हो जाता है, चेंज. tan ऑफ माइनस cos x क्या हो जाता है, चेंज होता है. कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है. जीरो ना करें, और प्लस इसको हम मोस्टली x, जब हमने पहले भी प्रॉपर्टी करी थी तो क्या किया था, x ग्रेटर देन 0. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि x लेस देन 0 पे क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है. बिकॉज x को फिर मैं माइनस y लिख सकती हूँ, वेयर y इज ग्रेटर देन 0 एंड देन tan ऑफ माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस tan y, राइट. तो प्लस माइनस का इंटरचेंज होने लगता है वहां पे. तो वी ट्राई कि हम इसे पॉजिटिव रखें, कोशिश करते हैं. तो हम क्या बात कर रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. यस, ये अब कैसे आएगा, सेम इसी तरीके से. क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको फाई मानूं और इसको साई मानूं तो मेरे पास tan ऑफ फाई माइनस साई की क्या प्रॉपर्टी आती है, tan फाई माइनस tan साई होल अपॉन 1 प्लस tan फाई tan साई. यस, यस और नो, यही आता है. तो मेरा tan फाई कितना है, x, tan साई कितना है, y. so x minus y upon 1 plus x y. this implies what, that phi minus psi is equals to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. and what is phi and psi, tan inverse of x minus tan inverse of y. yes, Yes. कोई प्रॉब्लम इसमें. so we have a third property that says that tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy for what, for xy greater than 1 and what, x comma y greater than 0. So मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी that why these people have not given you the reason for doing this, right. अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जहां पे हमारा एक्स वाई कैसा था, was less than -1. नहीं, wait, it was less than 1. it was less than 1. अब greater than 1 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इन्होंने इस बुक में क्लियरली मेंशन किया है that they are not focusing on why they are taking these restrictions because this is beyond the scope of the book.
मतलब कहीं भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया है कि ये x ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं, ये x -1 से 1 के बीच में क्यों ले रहे हैं. Why? Because they have stated that it is beyond your scope, so you don't need to focus on it apparently. Sixth says 2 tan inverse x is equals to sine inverse 2x 1 plus x square. How are you doing this? तो अगर मैं tan इनवर्स x को क्या मान लूं, y, तो इसका मेरा मतलब क्या आ जाएगा, दैट 2y. यस, अब tan इनवर्स x is equals to y, this implies what, that x is equals to tan y. Now if I talk about 2 tan y upon 1 plus tan square y, ये किसके बराबर आता है, what is this property? 2 tan x 2 tan x गलत, दिस इज साइन ऑफ 2 tan y. साइन 2x कैसे करते हैं बेटा, ठीक है. सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. सो अगर मैं tan इनवर्स x को y ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू tan y आएगा. यस, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y. यस, yes or no, what is this, sin 2y will be equals to 2 tan y upon 1 plus tan square y. yes, आती है ये प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब ये कितना है, sin 2y. so this implies what, that sin inverse of this is equals to 2y. yes, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2y बचेगा एंड y कितना था, tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x. यस, सेकंड मेरे पास क्या आती है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा. अगेन हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या लेंगे, y. यस, सो मेरा x कितना आएगा, tan y. तो मेरा cos इनवर्स ऑफ ये कितना बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y. ये कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, cos 2y. cos 2y की क्या होती है प्रॉपर्टी, 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y. यस, मेरा एक सवाल है, पूछे रहो. 2y की cos 2y की प्रॉपर्टी 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस sin 2x. साइन 2x की प्रॉपर्टी 2 sin x cos x भी आती है. यहाँ पे 2 sin y, सॉरी 2 sin x cos x ना बोलो ना, मैं क्या कर रही हूँ मैं, cos y. यस, और इसकी प्रॉपर्टी आती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी आती है. यस, सो क्या करूँ मैं उसका, क्या उल्टा याद होगा, दिस इज व्हाट दिस हैपेंस. इसी से तुम ये यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इट आउट लाइक, तुम्हारा क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो तुम साइन स्क्वायर एक्स को कितना मानते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. यहां रखो, कितना आएगा, एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. यस, सो तुम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस, क्या कर रही हूं मैं, पागल हो गई हूं मैं, पहले ही सही लिखा था मैंने.
अभी ठीक है. तो sin square x is equals to sin square x plus cos square x is equals to 1. So sin square x can be written as 1 minus cos square x. यहाँ डालोगे अगर 1 minus cos square x तो कितना आएगा? -1 plus cos square x. तो तुम्हारा आ जाएगा 2 cos square x minus 1. And this can also be written as 1 minus 2 sin square x. And this can also be written as this. Okay. So मेरे पास क्या आ रहा है? This will be equals to cos 2y. This implies what? That 2y. 2y is what? 2 tan inverse x. Yes? Yes or no? Next मेरे पास क्या आती है? थर्ड पार्ट क्या कहता है मुझसे? 2 tan inverse of x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. फिर से क्या करेंगे? tan inverse x को y रखेंगे तो tan y क्या आ जाएगा मेरा? x आ जाएगा. इसमें रख के देखते हैं tan inverse of 2 tan x upon 1 minus tan square x. ये कितना आता है? tan 2x आता है ये? Yes or no people? Yes or no? तो ये कितना आएगा? tan 2y. तो ये कितना आ जाएगा? 2y which is equals to 2 tan inverse of x. Yes. tan 2y की प्रॉपर्टी क्या होती है? tan x plus y की क्या होती है? tan x plus tan y 1 upon 1 minus tan x tan y. तो अगर दोनों क्या है? x ही है तो tan x plus tan x will be 2 tan x upon 1 minus tan x into tan x will be tan square x. तो यही आती है tan 2x की प्रॉपर्टी. So this is what completes the chapter. Should we do questions or should we not do questions?